वो जो माहौल देख करके एक दफा तो मेरा भी दिल बैठ गया कि ये क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ। शांति बनाए रखें, भाईचारा का शहर है, भाईचारा को बनाए रखें, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। कटक में अभी परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रणाधीन में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नजर रखा जा रहा है। From yesterday 10 o'clock in the night till tomorrow 10 o'clock in the morning, this prohibitory order will be remain in force. But as of today, only emergency services they are open. Government offices, school, colleges they are open. Hospital, medicine shops, grocery shops, and petrol pumps. जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। मैं आपके द्वारा कटक के समस्त बाशिंदा को बताना चाहूँगा कि वो किसी भी गुजब, किसी भी र्यूमर पर विश्वास ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ उनके नज़र में आती है तो तुरंत वो पुलिस वेबसाइट, कमिश्नरेट का वेबसाइट, ट्विटर हैंडल उसमें देखिए, उसमें जो तथ्य दिए जा रहे हैं उसको वो समझें। कोई भी असामाजिक तत्व जो आइन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस को जितना क्षमता दिया गया है लॉ में उसका पूरा उपयोग करा जाएगा। धन्यवाद। Yesterday's incident, prohibitory order under section 163 BNSS, which is normally called curfew, that has been passed by executive magistrate, and from yesterday 10 o'clock in the night till tomorrow 10 o'clock in the morning, this prohibitory order will be remain in force. We'll further evaluate how the situation is. Then we'll see whether it will further continue. But as of today, only emergency services they are open. Government offices, school, colleges they are open. Hospital, medicine shops, grocery shops, and petrol pumps. These are remaining open. Otherwise, all other commercial establishments they are remaining closed. And I am seeing that the people of Cuttack city and the different owners of commercial establishments, they have cooperated with us. Except the emergency services, the situation is peaceful. There are no people on the road. They are cooperating with us. So we hope that today it will go off peacefully. So totally 13 police stations are in the curfew area in this area. So how the situation is going on and how many persons are arrested? We are trying to enforce whatever prohibitory order has been passed in all the sensitive police stations of Cuttack Urban Police District, and we'll evaluate the situation, and depending on that, we'll take whatever action is required. 36 hours in this curfew is tomorrow 10 Tomorrow morning 10 o'clock. From yesterday night 10 o'clock till tomorrow morning 10 o'clock, 36 hours, this prohibitory order has been passed. We'll further evaluate depending upon how the situation unfolds. How many force have been deployed? We have 60 platoons of state police forces. They are already deployed. Today we have mobilized further forces. 8 company of paramilitary forces. They have arrived. The paramilitary forces such as Rapid Action Force, BSF, CRPF, and Odisha Swift Action Force. All these forces have been mobilized and deployed at crucial junctions, and they are keeping a close watch on the activities. You are also doing miking to announce these restrictions. Yes, we want the people to understand that we have imposed certain restrictions in view of section 163 of BNSS, which is usually called curfew. But we also are trying to communicate that the essential services that we are that are under exemption. So people can go to hospital, people can buy medicines, people can buy the essential items such as grocery or milk, etc. People can also go to the petrol pump for their thing. But except these essential services, all commercial establishments, they remain closed. That's why all the police station vehicles, they are on the road. They are doing the announcement through public address system to make the people understand what is allowed, what is not allowed. So one of the organizations call for ban. We have imposed a prohibitory order from yesterday 10 o'clock in the night till 10 o'clock tomorrow in the morning.
So we'll enforce that prohibitory order. We have registered cases based on yesterday's incident. We are identifying the people who are responsible for the violence, and we'll definitely take action against them. Damage, sir, how many shops and other stuff damaged? Those will also be evaluated. Those will be assessed, and whatever the damage they have caused as per law, also they will be imposed. A penalty will be imposed on them for as a damage to the public property and damage to the private property is concerned. Situation is under control. Yeah, situation is absolutely under control today. ये दुर्गा पूजा से आरंभ हुआ था। दुर्गा पूजा की विसर्जन में वो दो संप्रदाय के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। उसी को लेकर कल एक रैली निकला था। वो रैली में कल कुछ झमेला हो गया। इसी के चलते पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, प्रशासन ने। तो हम मानते हैं इस कर्फ्यू को, जो भी सरकार के सहयोग करते हैं। दुकान बाजार बंद है, आज बंद रहेगा जी, 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दुकान बाजार सब बंद है, क्या दिक्कत है? इमरजेंसी सर्विस इमरजेंसी सर्विस चालू है, दूध बच्चों के मिल रहा है, दवाई मिल रही है। बाकी दुकानें बाजार बंद रहेगा पूरा। आप क्या अपील करना चाहते हैं? शांति बनाए रखें, भाईचारा का शहर है, भाईचारा को बनाए रखें। आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा करता हूँ। पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पब्लिक को अपना काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? कोई अभी तक तो नहीं, अब दिन जैसे जैसे दिन होगा मान चलेगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नेट सर्विस बंद है जी, इंटरनेट बंद है। अच्छा है, बंद होना चाहिए, नहीं तो झूठी खबरें वायरल होती है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा। मैं अपने किसी काम से गया हुआ था तो आते समय देखा एक विशाल रैली निकल रही है और वहाँ दरगाह बाजार कदम रसूल के पास में काफी लोग भी इकट्ठा हो रखे थे। तो वो जो माहौल देख करके एक दफा तो मेरा भी दिल बैठ गया कि ये क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ। मगर ये जो हो रहा है, जो भी हुआ या जिसने भी किया, ये अच्छा नहीं हुआ। आने वाले जनरेशन जैसे हमारे बच्चों हो या आपके बच्चे हो, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। आगे से ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो तो प्रशासन को उसके लिए कुछ आगे बढ़कर का उसके ऊपर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कटक भी भाईचारा का शहर है। कटक जैसे हम लोग सुनते हैं भाईचारा शहर है भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहते हैं। मगर ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई, किस लिए आई, किसके लिए आई, ये अभी तक कोई मालूम नहीं चला। तो इसके ऊपर प्रशासन को अपना और जो भी पॉलिटिकल है आदमी, जो भी नेता लोग हैं, इसके ऊपर बैठ करके आपस में विचार करे, बात करे, जो इस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। सोशल मीडिया में कल से जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम पूरा हो रखा है। एटीएम जाएंगे, एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते, फोन पे पर पैसा लेन देन हो नहीं सकता है। तो ये थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। बच्चों के दूध के लिए दूध मिल रहा है, मेडिकल सेवा भी चालू है, मेडिसिन वगैरह मिल रहे हैं। और बाकी जैसे जो प्रॉब्लम है, घर में कुछ सौदा चाहिए तो वो सामान लेने के लिए दिक्कत आ रही है। देखिए, इमरजेंसी सर्विसेज खाली ऑन की है, मगर इंटरनेट बंद करने से सोल्यूशन नहीं निकलता है। क्योंकि आजकल अलग अलग तरीका होता है लोगों के पास भेजने के लिए। अगर आज आप इंटरनेट बंद कर भी देते हैं तो लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करके अगर कहीं और जाके उसको भेज भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सेस तो सारी जगह रहती है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेट बंद नहीं करनी चाहिए। और दुकान वालों को जितनी तकलीफ हो रही है जिस ये बंद से, वो एक तरीके से होना चाहिए था कि एक समय तक ही बंद करना चाहिए, जैसे सुबह से या दोपहर तक बंद करके रखना चाहिए था और बाकी शाम को खोल देना चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में प्रचार भी हो रहा है, उसके लिए क्या अपील करना? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। सोशल मीडिया का एक्सेस इतना सबको मिल चुका है आज के लोगों को, तो इन्फॉर्मेशन तो हर जगह स्प्रेड होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है। और मेरे को तो ये आशा है कि कटकवासी इतने समझदार हैं कि वो जानते हैं कि ये इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड करता है, और इस सब झूठे न्यूज पर इतना रिलाई ना करें, क्योंकि ये बस दंगा फैलाने की बात है और कुछ नहीं है।